Hello everyone. Hope you all are doing best in your health and spirits. In this video, you will learn about various terminologies used for prokaryotes and sometimes they are present in eukaryotes as well. So continuing with the structure of bacteria, here I have taken a picture that contains a shape of bacteria, different shapes you can see, and a structure of bacterial cell. So cells of bacteria may vary in shape and size. They are also showing some difference in their body lining. Like some have more hair-like structures, small hair-like structures, and some have less hair-like structures. Some of the bacterial cell are having flagellum with it and other are having pili or flagellum both with them. So what are they? What are the function of these hair-like structure or any other terms you are reading regarding this structure of bacteria or prokaryote cell structure? So when you will be going to start the characteristics of prokaryote or the structure of prokaryote, you will find some terms that are present for respective purpose. So what are those terms? What are the names? And what are their use in these cells? Why they are present? I have taken few terminologies here to make you understand what are they and what are the function in these cells. So here you can see the structure of bacteria. I have taken few questions regarding photosynthetic bacteria. So what are photosynthetic bacteria? What are the pigments present in that photosynthetic bacteria? Whenever you are reading about the structure of bacteria, so if you are getting through the photosynthetic bacteria, the term photosynthetic bacteria, not every bacteria is showing the photosynthesis reaction or photosynthesis process, but some of the bacteria show photosynthetic process or photosynthesis process. Those bacteria must have contained few pigments into them, that is bacteriochlorophyll, bacterioviridin, bacteriorhodopsin. So there are few pigments that must be present in photosynthetic bacteria that can show the photosynthesis or that can perform photosynthesis. So first we will start with these two questions. The scientist Von Neal determined that the equation for photosynthesis in green and purple bacteria, those are photosynthetic bacteria, was carbon dioxide plus hydrogen sulfide. So the reactants was in this photosynthesis, the reactants was carbon dioxide with hydrogen sulfide in presence of solar energy. When the photosynthesis we are learning about photosynthesis, we must know that the presence of sunlight is must. So in presence of solar energy, this reaction will be happening and the products will be glucose, water and sulfur. Here you can see there is no oxygen in this reaction. There is no splitting of water in this reaction. And why this hydrogen sulfide is present? So everything you will be getting know in this further paragraph. The second question is, which of the following categories of organism do not evolve oxygen during photosynthesis? किसमें ऑक्सीजन का इवॉल्व नहीं होता है या ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती है या प्रोडक्ट नहीं बनता है एज ए ऑक्सीजन? सो दैट इज photosynthetic bacteria. Answer will be photosynthetic bacteria. You can check the other options as well. So first I will start with bacteriochlorophyll. Chlorophyll आपको पता है that is a pigment that is performing photosynthesis in plant cell. So the bacteriochlorophyll is a type of chlorophyll that is only found in bacteria. This only bacteria can contain this type of chlorophyll. Another type of photosynthetic pigment that contains or that is found in halobacteria is bacteriorhodopsin. The third I have mentioned the pigment about for the photosynthesis is bacterioviridin. So क्या होते हैं एक बार पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं. Photosynthetic bacteria are capable of entrapping solar energy. Photosynthetic bacteria क्या होते हैं? Entrap करते हैं solar energy and
After entrapping solar energy, these with the help of few pigments, presence of pigments like bacteriochlorophyll, this photosynthetic bacteria is entrapping the solar energy with the help in presence of these pigments like bacteriochlorophyll and bacterioviridin to synthesize the complex food material. ओके सो जैसे सिंपल आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं. So photosynthetic bacteria is capable of entrapping solar energy and utilizing it for synthesis of complex food material due to the presence of pigment like bacteriochlorophyll, that is also known as bacteriopurpurin and bacterioviridin. नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. In the upper part I have mentioned that there is no oxygen evolvement, इवॉल्व नहीं हो रहा है ऑक्सीजन वहाँ पे. ठीक है, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं हो रहा है. फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन जनरेट होता है. तो यहाँ पे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस because no oxygen is evolved as there is no splitting of water. ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर से ऑक्सीजन के आयंस अलग नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट, इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस वाटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन भी नहीं होगा, so that it is not acting as a reducing agent to convert CO2 into glucose. So water reducing agent नहीं है तो भाई कोई तो reducing agent चाहिए होगा. So reducing power कौन provide करता है बैक्टीरिया को? हाइड्रोजन सल्फाइड और थायोसल्फेट और even some other organic compounds can also perform this activity. Okay, so this is about photosynthetic bacteria. I hope that is informative for you. Now starting with this plasmid, the another term you will came to know about what are these plasmid in this bacterial cell. बैक्टीरिया के पास अपना एक डीएनए होता है जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. बट उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया कंटेन्स a circular double stranded genetic material that is known as plasmid. इसे प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल डीएनए तो प्रेजेंट है वहाँ पे, अब ये एक्स्ट्रा बड़ा होता है और ये परफॉर्मेंस क्या देता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सिमिलर दैट डीएनए. सो अ प्लाज्मिड इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल within the cell that is physically separated from chromosomal DNA and can replicate independently. ये अपने आप डीएनए जैसा काम कर सकता है. It is not depending upon the bacterial DNA. So this plasmid is extra chromosomal and can replicate independently. This performs the function of DNA. Okay, understood? So like DNA is having all the genetic information, this plasmid is also containing some genetic information. आप आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड थोड़ा सा डिफरेंट होता है डीएनए से. They are most commonly found as circular double-stranded DNA molecules in bacteria. However, plasmids are sometimes present in archaebacteria and also sometimes in eukaryotic organisms. In nature, what is the nature of plasmid? What are the characteristics of plasmid? Plasmid often carry genes that benefit the survival of organism. Like plasmid contains the advantage types of genes that will provide some advantage to the cell. इसके पास बहुत ही स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, सारे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट जो भी होती है दैट विल प्रोवाइड सम एडवांटेज टू बैक्टीरियल सेल. लाइक इट कन्फर selective advantage such as antibiotic resistance. Okay, so these are containing some genetic information that will provide the bacterial cell with antibiotic resistance. While chromosomes are large, chromosome large होते हैं and contain all essential genetic information. ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? This is about bacterial DNA. But the plasmids are usually very small and contain only
एडिशनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब ये प्लाज्मिड की बात करते हैं तो ये प्लाज्मिड selective information carry करते हैं, but that is of more use, much advantage. Okay, next, though the chromosomes like bacterial, not like the chromosomes, when we are talking about chromosome we are talking about bacterial DNA, general chromosome, जो normal condition पे भी active रहते हैं, but these plasmids are not activated in all condition. These plasmid will perform in certain situations and condition. तो स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन और सिचुएशन पे ही ये एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जब आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्लोनिंग होती है, जहाँ पे रिक्वायर्ड जीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं किसी दूसरी सेल में, तो वहाँ पे हम इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड आर वाइडली यूज्ड एज वेक्टर इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, serving to drive the replication of recombinant DNA sequences with the host organism. So these plasmid will be used as a vector. Vector क्या होता है? जो desired characteristic एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाएगा। ठीक है, so this is used in molecular cloning within the host cell. It is serving to drive the replication of recombinant DNA. Understood? So this helps in different applications of biotechnology. In the laboratory, the plasmids may be introduced into cell. These plasmids are containing some advantageous genetic information, so this can be transferred from one cell to another for a specific function via transformation. मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बैक्टीरियल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू द वर्ड पिलाई और फ्लैजिला। तो ये क्या होते हैं? फ्लैजिला आपको पता है मोबिलिटी के लिए होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, these are flagella, long hair-like structure or long strands are present on the bacterial cell. तो ये flagella किसके लिए होते हैं? मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। एंड ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल दैट आर नोन एज पिलाई। इस PILI को अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं और इसे फिम्ब्राई भी बोलते हैं। दिस पिलाई इज ऑल्सो नोन एज फिम्ब्राई। दीज आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। अब हमारे अगर हम ह्यूमन हेयर की बात करते हैं तो वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये भी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इसको मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस, फिलामेंटस। पॉलीमरिक ऑर्गेनल्स, पॉलीमरिक मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में। सो दिस पिलाई इज ऑल्सो नोन एज फिम्ब्राई। दीज आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, filamentous, polymeric organelles expressed on the surface of bacteria. Hope this is also understood. अब इसका पिलाई का फंक्शन क्या होता है? Their function is to include mediation of सेल टू सेल इंटरैक्शन। ये जो होते हैं इसमें थोड़े ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑलवेज सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। सो दिस कैन इंटरैक्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में इंटरैक्शन प्रोवाइड करना, सेंस प्रोवाइड करना इनका फंक्शन होता है। सेकेंड फंक्शन इज मोटिलिटी। ये लाइक लोकोमोटरी ऑर्गन्स की तरीके से भी डायरेक्शन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं and also help in DNA uptake. Okay. Next, I have the term here. I have taken one term that is murin. This is very important name as this is a structural. This murin serves as a structural role in cell wall. जैसे कि सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, आपने पढ़ी हुई थी, बट बैक्टीरिया में क्या होता है? ये म्यूरिन होता है कंपोनेंट जिसकी सेल वॉल बनती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। विच सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन?
तो अब डाई एटम्स और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों ही बैक्टीरिया का ही नेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो जनरल क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किसकी म्यूरिन की बनी होती है या बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो वहाँ पे भी आप म्यूरिन वर्ड यूज कर सकते हैं। सो दिस, जैसे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, दिस इज गिविंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो सर्व्स एज काउंटर एक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर टू द साइटोप्लाज्म or of the cytoplasm. The cytoplasm is present in inside the bacteria. So this murin or the cell wall or the component of cell wall helps to keep internal environment of bacteria stable. ये osmotic pressure वहाँ पे maintain करके रखती है, ठीक है। It is involved in binary fission. जैसे कि अब सेल डिवीजन होगा तो डेफिनेटली सेल वॉल भी डिवाइड होगी, तो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन बाइनरी फिजन और सेल डिवीजन ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन। द आर्की बैक्टीरिया और द ग्रुप आर्की हैव सिमिलर लेयर कॉल्ड स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। सो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया। ये म्यूरिन जो होता है इसका नाम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी आप कहीं कहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज द कंपोनेंट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हियर यू कैन सी, जहाँ ये जो पर्पल कलर का जो लेयर दिया हुआ है, दिस पर्पल कलर लेयर इज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ग्राम पॉजिटिव में ये लेयर बहुत ही थिक है, बट ग्राम नेगेटिव में ये लेयर बहुत थिन है। तो ये थिन और थिक लेयर की वजह से भी इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, दैट आई विल डिस्क्राइब यू इन फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। ये म्यूसिलेजिनस शीथ जो होती है, ये म्यूसिलेज क्या होता है? म्यूसिलेज इज वेरी स्टिकी काइंड ऑफ मटेरियल जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास, ठीक है, बैक्टीरिया सेल के पास। क्या करता है ये म्यूसिलेजिनस शीथ? हेल्प इन अ प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज। बैक्टीरिया की हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे प्रिवेंट करता है ये? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? सेल एनगल्फिंग प्रोसेस होता है या एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का ही पार्ट है ये फैगोसाइटोसिस। मतलब कि एक सेल पूरी की पूरी अपने आप को ही एनगल्फ कर लेगी या दूसरी सेल इसको एनगल्फ करने के लिए अगर ट्राई करती है, तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है। टॉक्सिक ड्रग से प्रोटेक्ट करती है, केमिकल से प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑल्सो दिस म्यूसिलेजिनस शीथ protects the bacterial cell from desiccation. What is the meaning of desiccation? ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है। इसको म्यूसिलेजिनस शीथ थोड़ा सा स्लाइमी टेक्सचर में रखती है, सो दैट इसको मॉइस्चर कंटेंट सेल का मेंटेन रहे। डेसिकेशन मीन्स ड्राइनेस। दिस म्यूसिलेजिनस शीथ प्रोटेक्ट or prevent the bacterial cell from desiccation also. These sheaths are sticky to bacteria that binds the cell together, and due to this slimy nature they allow the cell to float. Okay, so this is about mucilaginous sheath or mucilage present in bacteria. This mucilage provides the slimy nature to the cell so that the bacterial cell can easily move from one place to another. ओके, उसको मोबिलिटी प्रोवाइड अच्छे से करेगी। अब ये डेसिकेशन भी प्रिवेंट कर रहा है, सेल ड्राई नहीं हो रही है तो भी वो फ्लोट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, म्यूसिलेज का फंक्शन था प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, टॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं टर्म पे लाइसोसोम। लाइसोसोम टर्म भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम्स टर्म आपने पढ़ा होगा सेल्स के रिगार्डिंग, यूकैरियोट सेल्स में पढ़ा होगा या एनिमल सेल, प्लांट सेल में पढ़ा होगा। तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं? जब आप बैक्टीरियल सेल में पढ़ोगे तो ये लाइसोसोम का फंक्शन आएगा वहाँ पे, ठीक है। जब आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब ये लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे।
तो एक बार यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि क्या होता है लाइसोसोम। Lysosomes are present in many human secretion, including tear, saliva, and mucus. Lysosome is a part of first level of defense in the body. जो ह्यूमन बॉडी होती है या हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसकी सेल में ये लाइसोसोम डिफेंस ऑर्गेनल का काम करता है, मतलब कि प्रोटेक्शन का काम करता है। इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द बॉडी। इट कैन अटैक एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। लाइसोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी आपने पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल जो होती है, यहाँ पे ये जो फैगोसाइटोसिस है, इसका मतलब क्या है? फैगोसाइटोसिस ये सेल एनगल्फिंग प्रोसेस है, मतलब कि सेल को डिस्ट्रॉय करना, सेल को एनगल्फ कर लेना, सेल को खत्म कर देना। तो ये कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। ठीक है, लाइसोसोम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो लाइसोसोम किस बैक्टीरिया को जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकता है और किसको लेट से डिस्ट्रॉय कर सकता है? म्यूसिलेजिनस शीट आपने पढ़ा कि ये लाइसोसोम से प्रोटेक्ट करेगी या लाइसोसोम के फंक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट, लाइसोसोम किस बैक्टीरिया को जल्दी डिस्ट्रॉय करेगा? लाइसोसोम कैन मोर रेडिली डिस्ट्रॉय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों ऐसा है। हियर आई हैव शोन किसको डिस्ट्रॉय करेगा, पहले यहाँ पे अच्छे से समझ लो। एक ही चीज पढ़ते हैं जिससे दूसरी अपने आप कंपैरिजन में याद हो जाएगी। लाइसोसोम कैन मोर रेडिली डिस्ट्रॉय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लाइसोसोम जल्दी से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो इसके कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये लाइसोसोम जल्दी क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है और ग्राम नेगेटिव को जल्दी क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट few terminologies that you will be able to get in the structure of bacterial cell. Okay, so whenever now you are reading about bacterial cell, its structure, what are the names present in this bacterial structure, okay, so then you will be able to understand the function of those structure very well after getting understanding this video. Okay, so bye bye and take care.